Budhya could have chosen to lead a life with the vanity of a pristine appearance, but she chose to very candidly share the fractured reality of mortal fate. A huge and historic moment. My Bhavi, she's going to be sharing her journey of bringing up a special needs child, my niece Prachi. And though I have witnessed the journey firsthand, I never imagined this day when her journey would become a guiding light for so many. So it's with great pride that I introduce Meenu Bhavi to all of you. She's a TEDx speaker with a passion for mental health. She's the founder of Caring Minds, an institute of mental health and catering to all age groups. She's the founder of I Can Fly, an institute for special needs, and Cafe I Can Fly, which is empowering the specially abled. How did you discover that your child has special needs? Namaste, Namaskar. So I'm a mental health professional and a special mom to a special needs young adult. So I started my journey 25 to 30 years back, and thank you Sumanji and Swati for inviting me to ECA to talk about much needed topic. When Prachi started going to a Montessori school, nobody could recognize that she needed help. Every day was complaints, lots of complaints, and she was the talk of the staff room. See the ignorance of the special needs, even the teacher could not recognize. That she is hyper, she is roaming around, and she is not listening, she is not studying. Then my sixth sense told me that something is wrong, and I took her to Bangalore in hands and got her assessed, and a piece of paper which I got, it was written there, low IQ ADHD, and that piece shattered my world. I went into severe depression. And that time, that moment, I needed more help than my daughter. My husband Sanjay took me to the psychiatrist to help me, not my daughter. So that time, this is a very important step that you are taking, because from the very early on, we should educate the teachers to know the red flags for the early intervention. Thank you. That was really very touching, because I can understand and I can imagine, visualize what kind of journey it must have been, what kind of revelation it must have been at that time. And now that after you realize, so what were the challenges you faced as a parent to a child with special needs? तो प्राची के साथ क्या होता है, एवरीडे यहाँ और भी नोनिधि भी बैठी हैं, और भी स्पेशल नीड्स पेरेंट्स होंगे ही, सभी जानते हैं कि स्पेशल नीड्स के साथ क्या चैलेंजेस होते हैं. तो स्पेशल नीड्स के साथ जो चैलेंजेस मुझे रोज होते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रैवलिंग. एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट्स इतना बड़ा होता है, इट्स सो ओवरवेलमिंग फॉर माय चाइल्ड, and the whole process of going through security check is very overwhelming. And मैंने उसको कितनी बार वहाँ ले जाके ट्राई भी किया कि वो उस वातावरण से वो हो जाए, पर it was not possible, मतलब हुआ नहीं. And taking her to shopping malls, because I just could not stop her taking her out. I take her everywhere, wherever I go, from the very childhood. From the age of 2 years, I take her everywhere. प्रॉब्लम होती है, and these are the issues जो हम लोगों की लाइफ बन गई है. हम लोग इसको इशू नहीं मानते हैं. These are life now. ट्रैवलिंग फिर भी पहले कभी लगता था, संजय बोलते थे, मैं बोलती थी कि I want my own holiday, let's go without प्राची. तो संजय बोलते थे no, I can't travel without प्राची. तो अब क्या हो गया कि प्राची के साथ ट्रैवलिंग ही हमारा हॉलीडे. हम उसके साथ बिना ट्रैवल इमेजिन ही नहीं कर सकते हमारा हॉलीडे. तो जैसे भी करना है, दैट्स आवर लाइफ. चैलेंजेस है, आई एग्री,
तो अब मैं जस्ट और भी पेरेंट्स जिनको बताना चाहूँगी कि आजकल मीट एंड ग्रीट या असिस्टेंट सर्विस मिलने लगी है मेजर सिटीज़ में, वेयर यू कैन हायर दिस प्रोफेशनल सर्विसेज। जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी उसमें चैनल में पार करने के लिए, तो दिस प्रोफेशनल्स टेक यू फ्रॉम कार टू द बोर्डिंग गेट। सो हम लोगों को बहुत आराम हो गया, बिकॉज हम लोग प्राची का ध्यान रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोगों को ये बहुत आराम हो गया है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस और भी है प्राची के साथ कि जब प्राची हर्ट हो जाती है, उसको कोई चीज़ से चोट लग जाती है, वो एकदम छूने नहीं देती, तो एकदम ट्रीट करने नहीं देती। कोई बहुत बहुत बड़ी मुश्किल है तो कभी कभी लगता है अभी तो हम लोग हैं, बाद में इसको कौन देखेगा। So these are the very few challenges that I'm sharing. I can totally understand that. I'm sure all of us here we understand the kind of challenges you must have faced in the beginning, and now that you've accepted them and moved on, that's really a work for a brave person. Of course, you must have felt overwhelmed, as you said. So there must be other times also that you feel overwhelmed. हम लोग क्या होता है जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं या काउंसलर जो होते हैं, तो लगता है कि इन लोग कभी ओवरवेल्म होते ही नहीं है, इन लोग कभी स्ट्रेस होते ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग भी स्ट्रेस होते हैं, हम लोग भी ओवरवेल्म होते हैं। एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल माई सेल्फ, एज एन एंटरप्रेन्योर, आई एम रनिंग 3 institutes. So when I am running 3 institutes and as a special needs parent, as a parent of a regular kid, regular adolescent, also taking care of my family, I stopped taking care of myself. मैं अपने आप को भूल गई, चारों तरफ घूमते and I started getting very overwhelmed. स्ट्रेस रहने लगी, एक तरह से मैं बीमार सी हो गई थी। तब मेरे को एक दिन रियलाइज हुआ नहीं, सबसे पहले आई कांट pour from an empty cup, so I have to be fit first to help others, to love others. So I reprioritize the whole life, the whole routine, and after that my life got settled. And yes, we get overwhelmed. अभी भी प्राची को अगर कोई इशू हो जाता है, शी इज़ माई जान, उसको कुछ भी इशू, नया इशू या कुछ भी इशू हो जाता है, वो दिल को छू जाता है, अभी भी रोना आ जाता है। Obviously. And that's a wonderful thing you said, that first you have to look after yourself. It's almost the same thing that when they tell us in the aeroplane, wear your mask first and then help others. So, and what are your child's strengths and what does she enjoy doing? So मेरी प्यारी बच्ची प्राची, उसकी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो हमारी स्ट्रेंथ है। She is our strength, our inspiration. She is strength of so many. The whole 3 organization, 3 इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन है। इतना 3 इंस्टीट्यूट उसके ऊपर चलता है, यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और प्राची की स्ट्रेंथ है कि वो एक, शी इज़ अ वेरी हैप्पी चाइल्ड। अगर उसका मूड कंट्रोल में हो, शी कैन बी ए वेरी वेल बिहेव्ड एंड स्वीट चाइल्ड, एंड शी इज़ ऑन हर फादर, शी इज़ अ टोटली पीपल्स पर्सन। शी लाइक्स टू बी विद फैमिली, विद पीपल। घर में कोई आता है, उसको अगर आवाज़ सुन जाता है कि घर में बुआ आई है या कोई आई, उसको पसंद है कि नीचे चली जाए, सबके पास रहे। तो शी इज़ अ वेरी सोशल पर्सन। और आपने नेक्स्ट कहा कि What does she enjoy doing? तो ये क्वेश्चन जब कोई पूछता है तो मैं पूछती हूँ कि हम लोग सबकी अगर छुट्टी होती है तो हम लोग को क्या करना पसंद है? शायद कुछ नहीं, वी जस्ट वांट टू रिलैक्स। सो प्राची इज नॉट डिफरेंट, शी लाइक्स टू डू नथिंग। उसको अच्छा लगता है गुड फूड, अपनी फैमिली के साथ रहना, हॉलीडे जाना, अच्छा खाना, बर्थडे में इनवाइट्स मिलना। जब हम लोग रेडी होते तो बोलती मम्मी हमको, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी रेडी होना है। तो बर्थडे में इनवाइट्स मिलना, जाना, तो यही उसको भी पसंद है। हम लोग हॉलीडे जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि उसको स्कूल जाना बहुत पसंद है,
पर स्कूल जाना नहीं होता तो रूटीन ब्रेक हो जाता है और रोज की जो एक्टिविटीज है उसकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जैसा बंद हो जाती है एंड शी लव्स टू बी अराउंड अस। दिन भर हम लोग के साथ रहती है, यही उसका सबसे ज़्यादा पसंद वाला चीज़। That's really wonderful. And she loves sports. Oh, that's nice. When you said that no, उसको भी बाहर जाना पसंद आता है, so I remembered one incident. There is a child. I think he's still in our school. So that child is slightly autistic, but the parents are kind of ashamed to take him out, and the child feels very upset. And he comes and tells us he wants to go out. He tells his parents, but they leave him in the house. So I think that's a wonderful thing that to first for parents to accept and then to act on it and then to forget about the society. Your child should be first with the parents. So thank you for answering that question. And next would be, as a child, I'm sure your child has had a lot of struggles to face. So any kind of struggles would you like to mention? प्राची पहले रेगुलर स्कूल जाती थी। मैंने पहले भी कहा था कि रेगुलर स्कूल में उसका बहुत बार बुली हुआ था एंड शी वाज बुलीड अ लॉट एंड जब भी उसका बुली होता था वो भी परेशान होती थी, मैं भी बहुत रोती थी। I used to cry a lot. She used to get bullied every day. And मैंने बताया ही था कि वो स्टाफ रूम की शी वॉज एट टॉप ऑफ द स्टाफ रूम। अभी भी बाहर जाती है तो कई बच्चे, क्योंकि हम लोग के कंट्री में बच्चों का दोष नहीं है, हमारे यहाँ अवेयरनेस ही कम है, तो बच्चे स्टेयर करने लगते हैं, फिर कई बच्चे फन करने लगते हैं। अपनी फैमिली में ही होता है कि कई बच्चे आते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, तो सब स्ट्रगल है, पार्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट फील बैड, बट खराब तो लगता है। Then, how does having a child with special needs affects your other child? जब भी एक स्पेशल नीड चाइल्ड घर में आता है तो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली, नॉट अपनी मतलब दादा दादी पेरेंट्स, अपना सिबलिंग, इवन एक्सटेंडेड फैमिली, सबको लगने लगता है कि हमारी ये फैमिली अफेक्टेड है। और व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट फॉर प्राची, Priyam was very sure कि I want a sister because she wanted a sister to gang up against parents, to wear short skirts, to go for night clubs. और ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्पेशली डॉटर सिस्टर आ गई और प्रियम बाहर पढ़ने चली गई, वापस आई, तो हम लोगों के बीच कभी कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं हुआ, पर आई थिंक धीरे धीरे प्रियम को समझ आ गया। टाइम तो लगती है, मैंने पहले भी कहा, टाइम तो लगता ही है हम लोग सबको। मेरे को टाइम लगा एज ए मदर एक्सेप्ट करने में, प्राची को बहुत साल लगा कि आई एम ए स्पेशल नीड्स मदर एंड आई हैव ए स्पेशल चाइल्ड। तो प्रियम को भी लगा होगा, उसने मेरे को कभी बताया नहीं, पर हम लोगों के बीच एक अनकहा समझौता है कि प्राची, गॉड हैज गिवन प्राची इन आवर लाइफ्स एंड शी इज देयर टू स्टे and she is her future mother. That's really wonderful. I'm sure she must be very protective about her now. Ma'am, once after you got to know about the initial diagnosis, so then after that, what was the process? Like, how did you react and what did you do? पता चला तो मैंने कहा था संजय मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए and I was medicated, but I became suicidal. Or if you go through my book, then you will know, because I was actually going to commit suicide, but God had different plans for me. भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था, मेरी कुछ और मंजिल थी। Actually, I was going to jump. उस मोड़ से इस मंच या इस दौर तक, यही मेरी कहानी, किस तरह से मैं आई, यही ये पूरा जो रोलर कास्टर का ये कहाँ मतलब प्राची का जब डायग्नोसिस हुआ तो मैं प्राची को एक्सेप्ट ही नहीं
नहीं कर पाई। प्राची को लेके देश विदेश घूमा उसकी थेरापी के लिए, उसकी साल दर साल देश विदेश बहुत सारी थेरापियाँ, बहुत सारे, एक बार डायग्नोसिस नहीं, कई बार डायग्नोसिस, कई बार असेसमेंट। उस प्यारी बच्ची को मैंने कितना परेशान किया होगा मैं बता नहीं सकती है। और मैं जब परेशान रहती थी मेरी बच्ची समझ जाती थी कि मम्मा परेशान है। मैं कभी नहीं समझ पाई कि मेरी बच्ची मेरे को देख के इतना समझ पा रही है। जिस दिन मैं समझ पाई कि मेरी बच्ची समझ रही है, और मैं समझ पाई कि अगर प्राची को खुश रखना है तो मुझे खुश रहना सबसे पहले सीखना है। बस वो जिस दिन समझ आया वो दिन लास्ट डे, दैट वाज द लास्ट। उस दिन एक्सेप्टेंस आ गया कि फैमिली को, प्राची को खुश रखना है तो मुझे खुश रहना सीखना है। That was the day that I accepted Prachi and everything was sorted. Now about her future, you must be worried. All parents are worried, and especially when you know that your child has special needs. So, what are your concerns for her future? Prachi का future, I think all the parents are concerned. हम लोगों के सिर पे हर समय एक तलवार रहती है कि क्या होगा, हमारी बात क्या होगा। प्रियम है, होने से भी रहता है क्या होगा, हमारी बात क्या होगा, कैसे रहेगी। क्योंकि कितनी बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हम लोगों को, क्योंकि भगवान ने हमारे इन बच्चों को कई चीज़ें नहीं दी हैं जो रेगुलर बच्चों को भगवान ने दी हैं। तो हमारे ये बच्चे जो हैं दे आर स्पॉइल्ड प्रिंसेस बाय अस। हम लोगों ने इन लोगों को स्पॉइल कर रखा है, क्या करें, मन नहीं मानते, स्पॉइल कर। तो हम लोगों को लगता है हमारे बाद क्या होगा इनका, तो ये चिंता सताती है। पर फिर भी ठीक है, मन को संतोष किया है कि नहीं प्रियम रख लेगी। फिर भी फॉर द फ्यूचर फाइनेंशियली आई हैव मेड हर टोटली सिक्योर दैट एटलीस्ट शी इज नॉट ए फाइनेंशियली burden on Priyam or anybody else, and for emotionally of course she will be needing support from Priyam, and I have a fantastic family around, and I am making many documents of her medical, क्या मेडिकल एलर्जीज है इसको, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट्स हुआ, छोटे छोटे जो इसके साथ इंसिडेंट्स होते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है। क्योंकि अभी तो हैंडल मैं और उसके कंपेनियन ही करते हैं, तो बाद में तो मैं और उसके कंपेनियन जो है वी आर ऑफ सेम एज, वी विल नॉट बी देयर। सपोज को चोट लग गई, शी कांट बी, उसको चोट जब ठीक की जाती है वो एक बड़े माहौल में उसको नहीं ठीक किया जा सकता। शी गेट्स वेरी ओवरवेल्म्ड, शी हैज़ टू बी ट्रीटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं डायरी में नोट कर रही हूँ कि उसके बाद फिर प्राची को फ्यूचर रेडी कर रही हूँ कि मेरे बाद जो भी उसके साथ रहेगा उसके लिए स्मॉल स्मॉल नोटिंग्स रहेगी कि जब भी कोई क्राइसिस होगी, जैसे प्राची के कुछ भी फीवर हो जाता है या कुछ हो जाता है, वो डॉक्टर से बहुत घबराती है, तो वो प्रोसेस जारी है कि उसको डिसेंसिटाइज किया जाए डॉक्टर से। स्कूल में भी बोला हुआ है, तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, बिकॉज अभी हम लोग तो जैसे भी संभाल लेते हैं, पर डेफिनेटली फ्यूचर में इट्स नॉट डन। आई डोंट वांट टू मेक प्रियम्स लाइफ डिफिकल्ट आफ्टर अस, सो ऑफ कोर्स फ्यूचर इज ऑलवेज। And how have you evolved as a person? From the 18-year-old Minu who had star in her eyes, who wanted to become a doctor, to the 30-year-old Minu who lost that spark for a while, to the Minu today who has spark in her eyes, who has now purpose in her veins, and I have been through a roller coaster ride, and I can't wait what is there for me in the future. And इससे ज़्यादा अगर आपको जानने की ज़रूरत है या इच्छा है, प्लीज़ गो थ्रू माई बुक, बिकॉज इससे ज़्यादा बताने लगूंगी तो कल हो जाएगी। Thank you so much, and you are right. The book that I have read, Death of a Caterpillar, that inspired me. That we need to bring this out, your thoughts, and we need to discuss this in front of others and let others know about your journey also. So really, that is a wonderful book,
please go through that. And the books are there outside. You can buy them also. And I think they're available online as well. And thank you so much for sharing such wonderful thoughts and your personal experiences. I really salute your spirit. Thank you. थैंक यू। ये सब शेयर करने के साथ एक चीज़ और है, थैंक यू टू माय फैमिली, माय एक्सटेंडेड फैमिली, टू गॉड, टू माय पेरेंट्स, माय इन-लॉज। इन सब के सपोर्ट के बिना ये जर्नी कभी पॉसिबल नहीं होती। बहुत बहुत सपोर्ट मिला मुझे, सबका बहुत साथ मिला। और ये जो मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए नहीं कर रही कि मुझे नेम मिले, फेम मिले, नहीं। क्या होगा, नेम फेम चला जाएगा। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि और पेरेंट्स भी जो अंदर बैठे हैं बाहर आए, शेयर करें और दूसरों को हिम्मत दें। यस, देयर इज अ होप, यस वी कैन डू वंडर्स। व्हाई हम लोग क्यों अंधकार में बैठे रहें? बहुत वंडर्स कर सकते हैं हम लोग। एक पेरेंट मिल के 100 पेरेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। देयर इज होप।